Hello, good morning, all of you. Hello, yes, student. Good morning. Very few students are there. Only three, four students are there. Hello. You can unmute yourself. You can say the presentee and absentee. There are four students are there. Priyanka, Shahbaz, Anand, Present, sir. and Deepak. Right? Where are Yes. other students? Don't know. Today we started the lectures or not? Okay, fine. So again, I'm sharing your screen. Welcome, Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahavidyalaya Vasai West. We started FI BSc IT first sem. Actually, it is not a fifth sem. Wait, that is our first sem. Subject is imperative programming, presented by Assistant Professor Bipin P. Vaiti. Okay, student. Now Abhishek joins Somesh Shinde. Wait, I'm taking the attendance also one by one. Abhishek and Sheikh. Shinde, Somesh. Somesh. Okay, now continue. Let's start now again. What is your imperative programming that I have to learn? First of all, I want to just ask you related your computer knowledge because it is in the part. I already share you what my unit one subject is related IP set publications textbook. I refer that and I give you PDF already. Are you getting that PDF? Yes, student. On WhatsApp group I share IP PDF file. It is unit 1. Okay, are you getting? Yes, student, reply me. You can unmute yourself and you can reply. Yes, Hello. sir. Yeah, already I share syllables of FYBST IT all subjects, and after that I already share what practical related work. Practical related is means when you are getting the university practical slip, that time they use the 2 program or 3 programs. We have to do it over there, and we have to get the fit. Our marks distribution is like that: 75 marks for theory, 25 marks for internal unit test. Okay, and after that 50 marks for practical. Sir, your voice is not coming properly. Hello. Coming properly. Yes. Now. Hello. Now. Hello. हेलो, आवाज आ रही है? वेट. हेलो. वेट. हेलो. हेलो. नाउ इट इज. हेलो. अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So we already share you what your syllables. I shared my practical subject related IP, what we are getting from the university practical slip. I share you all the practicals also. Don't worry, I share you all the practicals what you have to write in the journal. Okay, and then after that I already share you unit 1 part. It is a from state publication textbook.
Is it clear? Okay. Hello. Yes, Yes, student. sir. Okay. Don't be shy. Frankly, friendly. You can respectively. You can ask any doubt. ऐसे नहीं है कि आपको चुपचाप बैठ के रहना है और सुनना है. You have to listen carefully. But if you have the doubt, you can raise your hand or in between also unmute yourself one by one, and you can clear your doubt. This is the session 9 to 10:30. It is online, so many technical issues we will get it, but we have to face and we have to learn whatever subject related BSA. Is it clear? Okay. See, last 20 years I am in this field, okay, and 15 years I am teaching in this field as a programming subject. So IP is my favorite subject. As C is my favorite subject. Okay, C is my favorite. In that time, in graduations and MCA, I learned only C, and after that C++, Java, ASP.NET, or many other language, PHP, or designing language, or others web programming language, HTML, DHTML, that I have learned own. So that means we have to know the logic of the program. If you understand the logic of the program, your concept, your syntax of the program, rules of the program, coding, that you when clear in one subject, so you can easily attain the other subject and practice at home. Then also you can learn, okay, easily any subject. If it is in your university, they are not given that subject. So then also you can learn at home because we have the many source, YouTube, Google, okay, many apps are there, mobile Android apps are there, that they teach you how to write the code, how to execute and learn particular language. Okay, so first of all I just check your knowledge one by one. Have you know about the computer, because it is the part of that introductions to computer and all that, and after that they say you have you know about the computer very well? Yes, student, reply me. Yes, sir. Yeah. So their computer is electronic machine which is used to what take the input, process it, and gives the output. They perform the arithmetical, logical relation operations, etc., etc. There are many types of computer. There are mainframe, personal computer like desktop, laptop, on top, tablet PCs are there. There are many PDA, personal digital systems are there. Also workstations computer are there, mainframe computers are there. So these are all that types of the computer. After that, we know the characteristics of the computer also. That means it gives accurate data, speedy data. It automatically autocorrection systems are there in spelling correction, grammar correction. Then storage systems are there. Then cost reductions is like that. If your work one computer works more than 10 people, right? It can work like that. So that is cost reduction. Then adaptability is there. Paperwork reductions are there. And diligence, main important diligence. There are diligence. Okay. Computer never exhausts or dull. Lack of concentrations. Okay. They are never dull. Okay. हम लोग dull हो सकते हैं, वो नहीं. These are all that thing. But then also it is dumb machine. Why? Because without you it cannot work, without your instruction it cannot work. That's why I said it is dumb machine. Then also because it is seen like that, when you provide any instruction, on that instruction it react, or on that instruction if they have the program, then only execute. अगर उसके अंदर इनपुट ही नहीं है, प्रोग्राम ही वो नहीं है, आप कितना भी इंस्ट्रक्शन दो वो काम नहीं करेगा. इफ डेस्कटॉप कंप्यूटर डोंट हैव अ कैमरा और आप कैमरा का प्रोग्राम चालू कर दो, होगा क्या? पॉसिबल नहीं होगा. दैट मीन्स सम ऑफ द इनपुट्स, प्रोग्राम्स, ड्राइवर्स रिक्वायर्ड, और उसी के बाद वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट, आउटपुट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट. देयर आर मेनी डिसएडवांटेज. दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन यूजर. वी आर यूजर, वी आर यूजर. फ्रैंकली वी आर सेइंग वी आर यूजर. अगर हम लोग कुछ कंप्यूटर को बताएंगे नहीं, इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता. जब तक हम लोग उसके अंदर इनपुट नहीं करते कुछ नहीं कर सकते. ओके, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंडेंसी. फिर एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स
उसको फ्री एनवायरनमेंट नहीं है, उसको मालूम है आपको वैसे एनवायरनमेंट नहीं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। आपको पता है ऐसे किधर भी एनवायरनमेंट में नहीं चलेगा, डस्ट फ्री होना चाहिए। एसी अभी नहीं चलेगा, पहले के जमाने एसी कंपलसरी था, अभी ठीक है क्योंकि एनवायरनमेंट अगर थोड़ा बहुत हवा एग्जॉस्टेड हो रही है तो नो प्रॉब्लम। नो आईक्यू, उसको कान के नीचे दो बजाओ, उसका आईक्यू है क्या? नहीं है, इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं। पर वो अपने ही रहे, नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, नो आईक्यू। जैसे नो आईक्यू, अपने आप से कुछ बात नहीं करेगा, अपने आप से आप जो पूछोगे उससे ही वो बात करेगा, आप जो इंस्ट्रक्ट करोगे, आप जो डेटा सर्च करोगे उसी पर। नो आईक्यू एंड ऑल्सो नो फीलिंग, कान के नीचे उसके बजाय कुछ नहीं होगा, उसको मारा कुछ भी नहीं पता चलेगा, नो फीलिंग्स। So these are all that disadvantage of computer. Then they are saying basically operating systems के बिना हम लोग कोई भी लैंग्वेज कोड डायरेक्ट सीख नहीं सकते। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अबाउट द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर वी रिक्वायर। एनी कंप्यूटर रिक्वायर द फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम ही नहीं कर सकते। जैसे विंडोज ओएस, if you install the Windows OS on desktop, then only we can work other application, other software, other app, other custom built software, वरना नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको उसके अंदर, जैसे मोबाइल में भी एंड्रॉयड ऐप होता है, एंड्रॉयड मतलब ही ओएस होगी और उसके अंदर एंड्रॉयड मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते, सबसे पहले ओएस और उसके बाद ऐप। Okay, so there are pile types of operating. So operating system is a just software that manages all things, hardware also and software, because printer मैंने अटैच किया डायरेक्ट वर्क नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको प्रिंटर के बारे में मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स इज अ डिवाइस ड्राइवर। इफ यू इंस्टॉल द प्रिंटर, आपने यूएसबी लगा दिया तो उसको ड्राइवर की जरूरत है। और आजकल विंडोज 10 या बहुत सारे ओएस में ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ ड्राइवर्स एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए आपको प्लगइन्स पूछता है और देन वी हैव टू इंस्टॉल ड्राइवर डायरेक्टली। और विंडोज 10 में फैसिलिटी है, आप इंस्टॉल करो उसके बाद वो उसके अंदर ड्राइवर है, आप नेट पे रहोगे इंटरनेट पे तो वो आपका डिवाइस इंस्टॉल करे, कोई भी कैमरा हो, यूएसबी हो, ऑल डिवाइसेस। आजकल तो यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, राइट, यूएसबी, तो वो पोर्ट आपको कीबोर्ड के लिए काम आता है, माउस के लिए आता है, तो उसके भी ड्राइवर होते हैं अलग अलग। कैमरा अटैच किया, स्कैनर अटैच किया, प्रिंटर अटैच किया, वॉट एवर डिवाइस यू अटैच, that device driver we have to give the utility software inside the OS, then your OS handles that software and उससे के बाद आपका प्रोग्राम जो भी कैमरा का प्रोग्राम, प्रिंटर का प्रोग्राम, स्कैनर का प्रोग्राम, यूएसबी प्रोग्राम वर्क। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, this is basic knowledge of computer I am going on. Okay, listen, then there are types of, अब सोने गए ना? Yes student, प्रियंका, hello, are you present? प्रियंका, अभिषेक, सोमेश, हेलो सर आवाज नहीं आ रही फिर से? यस सर, नहीं आ रही है, आप लोग सो रहे हो क्या? हेलो सोमेश, यस सर। अभिषेक, प्रियंका, वेयर इज प्रियंका? शेख शाहबाज, Yes, sir. या अर्णव घवर, यस सर। Yes, sir. दीक्षांत बुआ, Yes, sir. निशांत है सर ना? आपका वॉइस लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, मैं हेडफोन लगाया तो भी हो रहा है। तो एक मिनट मैं माइक लगा देता हूँ, then we will talk. Yeah. Hello. 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 Yes, sir. Yes, sir. All right. Wait. Just wait. मैं माइक पे डाल रहा हूँ। हेलो हेलो, अभी आ रही? Yes, sir. ओके फाइन, अभी माइक पे डाला है, माइक पे आवाज आनी चाहिए। हेलो, ओके फाइन, ओके क्लियर है? अभी अभी किसी को प्रॉब्लम है? Yes, sir. Okay, fine. No, So we will continue. So I'm talking about the what? Operating system. So what is operating system? Already बताया, it is a just middleware between hardware and software. आपके application software को workout करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल किया जाएगा? OS.
विंडोज, पहले सबसे पहले विंडोज नहीं था तो क्या यूज करते हैं, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है डॉस इज ब्लैक एंड व्हाइट कमांड प्रॉम्प्ट। अभी में हम लोग सी के प्रोग्राम में कर रहे हैं, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या डेवलप किया हुआ है, यूनिक्स एंड योर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो बैच। ओके, देन रियल टाइम, कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में रियल टाइम है, किसी टीवी में होते हैं रियल टाइम होते हैं, उसके अंदर भी ओएस होती है, बट वो उनकी स्पेशल सॉफ्टवेयर, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। इवन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी थे, विंडोज एनटी, आजकल हम लोग नेटवर्क में कंप्यूटर वर्कआउट कर सकते हैं, टीम व्यूअर, एनी डेस्क, इस तरह से हम लोग वो ज्वाइनिंग करके सर्वर के थ्रू आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप रिपेयर कर सकते हैं। दिस आर ऑल दैट फैसिलिटी। इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग शेयर कर सकते हैं टेलीफोन लाइन, या कोई भी पीसी से हम लोग शेयरिंग करना है तो दैट वर्क वी कैन डू इट। ओके, फिर मल्टी यूजर, आजकल मल्टी यूजर है, मल्टी यूजर मतलब एट ए टाइम दो दो यूजर, तीन तीन यूजर उसके बैठ के काम करना, उसको मल्टी यूजर बोलते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। फिर एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब चेंजेबल ऑलवेज, जैसे हमारा लोग को जैसे लिनक्स, लिनक्स इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग को जैसे डेस्कटॉप रखना है, हम लोग को जितनी जरूरत है एप्लीकेशन उसके हम लोग कर सकते हैं। मोबाइल, आजकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जमाना चालू है, ऑलरेडी वी नो दैट, मेनी एंड्रॉइड ही नहीं है तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे ओएस होते हैं, मोटोरोला है, इन सबके ओएस के थ्रू हम लोग वो काम कर सकते हैं। Then we have to know the somewhere hardware also. Input devices, keyboard, mouse, scanner, whichever we input the data. Output devices, printer, ये सारी चीजें मालूम है, मैं just revise कर रहा हूँ। Then after that इन सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जब हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर खाली रहेगा, सॉफ्टवेयर नहीं है, then also we cannot work in the computer. और अगर सॉफ्टवेयर है, सॉरी हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, then also we cannot work. फर्स्ट सॉफ्टवेयर वी हैव टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग एंड आफ्टर दैट जो भी एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस हो, कस्टम बिल्ड हो, हम लोग को वो इंस्टॉल करना हो, देन वी कैन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी भी सी के प्रोग्राम में हम लोग लैंग्वेजेस करने वाले हैं तो उसके लिए कंपाइलर की जरूरत है। सी इज अ कंपाइलर, टीसी इज अ कंपाइलर, राइट? ओके, नाउ वी हैव टू समवेयर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग लॉजिक। अभी हम लोग वेल का सी प्रोग्रामिंग लास्ट टाइम देखा था, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि लास्ट टाइम सी देखा था, तो सी इज लैंग्वेज। अभी उसके बारे में वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने सुना नहीं है, आज से हमारा लेक्चर ऑफिशियली प्रॉपरली चालू रहेगा एंड आफ्टर दैट आई विल नॉट रिपीट अगेन। सी program language is a general purpose high level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie to develop the Unix operating system at Belen Laboratory। ATN बिल अमेरिकन लाइब्रेटरी है जहां पे डेनिस मिची ने हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल के पहले कौन सा लैंग्वेज, देयर आर मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट वी कैन से द लो लेवल लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल, इससे पार्ट है डायरेक्टली नहीं। मशीन लैंग्वेज सिंपल, इट इज इन zeros and one. Assembly language, that is 8085, those who know the CS मतलब computer science student, CS2, there are 8085 program is there, that time they use the 3-letter command और 3-letter command से assembly language use करते थे और उसमें वो command का convergence and they do the some calculation program, addition, subtraction, multiplication, division through this kit, through this software। okay, उसके बाद हाई लेवल, नाउ हाई लेवल बोला तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोड। तो हाई लेवल में क्या होता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, गेट सीएच, क्लियर स्क्रीन, तो ये सारी कमांड जो हम लोग को क्या बता रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आता है कि गेट सीएच का मतलब गेट कैरेक्टर है, प्रिंट एफ का मतलब कुछ प्रिंट आउट हो रहा है हमारा, ये सारी चीजें हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द बाय द डेनिस रिच। ओके, have you understood who developed the C? Yes student, who developed the C? Dennis Ritchie. Okay, अच्छा, you have to attempt, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, आपका वीडियो देख नहीं, वो किसमें डेटा हमारा ज्यादा चला जाता है, फिर हम लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम, मोबाइल डेटा, इसलिए हम लोग ये वीडियो नहीं, लेकिन ऑडियोबल होना जरूरी है। वन वे कम्युनिकेट होगा नहीं चलेगा, 2 वे कम्युनिकेशन। मैं आपको कभी कभी बीच में पूछ लूंगा, जस्ट नाम लेके भी पूछूंगा डायरेक्टली। ओके, तो यू बी अलर्ट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको अलर्ट रहना जरूरी। नेक्स्ट, इंडिया यूनिक्स,
आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा द सी कंपाइलर एंड एसेंशियली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम हैव बीन रिटन इन सी। एक यूनिक्स ऑपरेटिंग डॉस बेस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लिनक्स के पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो आपका डेवलप हुआ है थ्रू सी लैंग्वेज। तो सी हैज नाउ बिकम अ वाइडली यूज्ड। सर फिर से वही हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा बराबर। हेलो, लेकिन मैंने तो वायर बियर कुछ भी हिला नहीं। देयर मे बी यू हैव नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। क्लियर? आप लोगों को मोबाइल इधर उधर घुमाना नहीं, जरा स्टेडी रखो। जैसे मैं लैपटॉप को यहाँ हाथ नहीं लगा वैसे ही आपको मोबाइल पे भी एक बार स्टैंड पे रख दिया, डोंट टच द मोबाइल, ओनली लिसन। हेडफोन इधर उधर करने में भी आपका वॉइस चला जाएगा। मैं तो हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ। ओके, अभी आवाज आ रही है? यस, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. The C has now become a widely used professional language for various reasons. Of course, प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो पहले सारे अभी भी यूज होता है। इट इज नॉट आउटडेटेड, वी कैन से आउटडेटेड व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस रियलिटी में। लेकिन वापस लेके आए कि बहुत सारे रियल एप्लीकेशन आज भी, जैसे आईओटी, आपने सुना होगा आईओटी का प्रोग्राम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें ड्रोन ऊपर उड़ता है, वो कैमरे में सर्च करता है, गाड़ी अपने सेंसर से चलती है, और वेदर फोरकास्टिंग होता है। दिस आर ऑल दैट प्रोग्राम्स। जो भी कोडिंग लिखना है ना, उसके लिए सी की जरूरत है। So C has not outdated, but say used for real application now actually. C has now become widely professional level, various, easy to learn, structure language, procedure language, procedure, instructive language. मतलब आप जैसे इंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करोगे वैसा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बन जाए, स्ट्रक्चर बनेगी। इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंट प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं हम लोग, बहुत कैलकुलेशन। मैंने तो ग्राफिक्स विफिक्स भी इसमें क्रिएट किया मेरे टाइम में। तो यू कैन डू इट वेरी वेल। आप अगर अच्छी तरह से यूट्यूब वीडियो पे जाके आप देखोगे तो आपको सी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका बेस सी में स्ट्रांग होगा तो आपके अदर लैंग्वेज दैट इज सी प्लस प्लस, जावा, दैट इज अपग्रेडेड, आपको इजी लगेंगे, डॉट नेट। सो आपको उसीलिए सी एक बेस है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत लो। देन इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज। आपके अंदर आराम से प्रोग्रामिंग लेवल एक्टिविटीज इजी कर रहा है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वैरायटी ऑफ एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मतलब ये कोई भी प्लेटफॉर्म में वर्कआउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे टीसी, यू कैन यूज इट ऑन द लिनक्स, देन आल्सो इट इज वर्किंग। टीसी वी कैन गेट इट ऑन द विंडोज, देन आल्सो इट इज वर्किंग। यूनिक्स, देन आल्सो इट इज वर्किंग। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट, यस सर। इंट्रोडक्शन। सी माइट बी कौन कौन से ऐप के अंदर हम लोग को क्या करना चाहिए। एक, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत, लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर, मतलब सी क्या क्या कर सकता है, ओएस बना सकता है, कंपाइलर है बना सकता है, नए नए असेंबलर प्रोग्रामिंग रेडी कर सकता है, टेक्स्ट एडिटर बना सकता है, प्रिंट स्पूलर के प्रोग्राम बना सकता है, नेटवर्क ड्राइवर के प्रोग्राम बना सकता है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग जो आजकल यूज हो रहे रियल एप्लीकेशन के लिए, टीवी प्रोग्राम, मोबाइल प्रोग्राम, या रियल एप्लीकेशन जस्ट लाइक कोई सेंसर का प्रोग्राम बनाना है उसके लिए, डेटाबेसेस के प्रोग्राम में यूज हो रही है। लैंग्वेज इंटरप्रिटर यूज है। लैंग्वेज इंटरप्रिटर में जस्ट लाइक कंपाइलर, ब्राउजर इज इंटरप्रिटर, तो वो इंटरप्रिट करने के लिए भी सी लैंग्वेजेस डेवलप कर रहे हैं। यूटिलिटी, मेनी डिवाइस ड्राइवर, माउस, कीबोर्ड, कैमरा, उस डिवाइस, नेटवर्क ड्राइवर सी से डेवलप हो जाते हैं। That's why they are saying application. Which are the applications C might be doing? C program basically consists of the following parts. उसके अंदर पांच पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। प्रोसेसर कमांड, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन एंड कमेंट। मतलब प्री प्रोसेसर में हम लोग को हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ता है, दैट इज हैश इंक्लूड एंड ऑल। अभी ये प्रोग्राम दिखाने से पहले आई हैव टू ऑल ऑफ यू कैन ओपन दैट पीडीएफ फाइल जो मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। कौन सा पीडीएफ फाइल? इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का पीडीएफ फाइल दिया है। डायरेक्टली आई जंप ऑन द 5th पेज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सिंपल प्रोग्राम लॉजिक। वो पार्ट है, आपको देखना है तो आप ओपन करके बैठ सकते हो और चेक कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग है ना? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा हुआ पीडीएफ फाइल में इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने यूनिट 1 दिया है। उसके अंदर फर्स्ट पेज, अंडरस्टैंडिंग सिंपल प्रोग्राम लॉजिक,
वो पार्ट पहले सबसे Yes, sir. ओके. सो प्रोग्राम मस्ट बी रिटन यूजिंग प्रॉपर सिंटैक्स विद. यहाँ पे भी मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे. मैं स्क्रीन शेयर करते हुआ दोनों एट अ टाइम चालू कर रहा हूँ, मतलब आपको दिखाई भी देगा. जिसके पास वो बुक आया नहीं है उसको भी पा दे. मैंने इस तरह प्रोग्राम का बुक आपको शेयर किया हुआ. ठीक है. उसी के अंदर आपका फर्स्ट पेज दैट इज द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो दिया है, उसमें मैंने अंडरस्टैंड यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि वो बेसिक पार्ट था, वो आपको पता है कंप्यूटर का. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ प्रोग्रामिंग लॉजिक. आपको सबको दिखाई दे रहा है? यस. ओके. Yes, sir. Now I start that. What is programming? Very important, ना? Logic. If you don't have the logic, you cannot work easily. तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए. लॉजिक क्या होता है? लॉजिक प्रोग्राम. मुझे बताओ कोई भी प्रोग्राम. अगर मैंने बताया आपको आपके कॉलेज से स्टेशन तक जाना है तो आप बोलोगे सर मैं कैसे जाऊँ? रिक्शा से जाओ, बाइसिकल से जाओ, बाइक से जाओ, कार से जाओ, बहुत सारे वे. ओके फाइन. ऑब्जेक्ट का पता चल गया. फिर नेक्स्ट वन आप पूछोगे सर कौन से रास्ते से जाओ? देयर आर मेनी वेज. सेम लाइक दैट लॉजिक. आपको लॉजिक यूज करना है कि आपको क्या करना है. तो दैट इज प्रोग्राम में बहुत सारा लॉजिक होता है, वो आपको यूज करना हो. मैंने बताया है यू हैव टू डू द एडिशन प्रोग्राम. ओके. आपको एडिशन का प्रोग्राम करना है तो आप बोलोगे सर a+b करूँ कि b+a करूँ, या 3 नंबर का एडिशन करो या 4 नंबर का एडिशन. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती. तो प्रोग्राम मस्ट बी रिटन यूजिंग प्रॉपर सिंटैक्स विद यूजिंग एप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्पेसिफिक रूल्स. इस लैंग्वेज में जैसे रूल्स आपको डिसाइड किया हुआ है, जैसा सिंटैक्स बताया हुआ है, उसी तरह प्रोग्राम को लिखना जरूरी है. सिंटैक्स मतलब रूल्स. कोडिंग के लिए जो रूल्स प्रोवाइड करे, जैसे आपको बताया मैंने पहला रूल्स मैंने अभी बताया क्या? प्री प्रोसेसर मतलब क्या? प्री प्रोसेसर कमांड मतलब क्या? बिफोर राइटिंग द स्टेटमेंट यू हैव टू डिक्लेयर द हेडर फाइल्स विच यू हैव टू यूज. उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर. क्लियर? हेलो यस स्टूडेंट. Yes, sir. Yes, sir. फाइन. सो मुझे सिंटैक्स बताना है. सिंटैक्स में पहला पार्ट बोला मैंने प्री प्रोसेसर. दैट मींस आपके हेडर फाइल ऊपर जैसे हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, दैट इज योर हेडर फाइल, और वो आपको डिक्लेयर करना है. जैसे इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हो प्रोग्राम के स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दैट इज हेडर फाइल प्री प्रोसेसर कमांड. क्लियर? ये हेडर फाइल क्यों डिक्लेयर करने हैं? तो इसके नीचे जो मैं printf, scanf, getch, clear screen इस तरह के जो भी कमांड में यूज करने वाला हूँ, ओके, printf, scanf, getch, clear screen या जो भी स्टेटमेंट for loop, do while loop, उसके रिलेटेड हेडर फाइल्स के फंक्शन में प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो दैट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची. और वो प्रोग्राम जब हम लोग कॉल करते हैं, वो कमांड जब हम लोग कॉल करते हैं जैसे printf, तो printf इज अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस वेयर इन द stdio. stdio में printf के बारे में ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है और वो एग्जीक्यूट इधर हो रहा है, इसलिए हेडर फाइल जरूरी है. getch के बारे में conio के अंदर लिखा हुआ है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. stdio मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. ओके. सो Yes, sir. अगेन आपका प्रोग्राम लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सिंटैक्स क्लियर होना चाहिए. कि प्रोग्राम एज अ सिंटैक्स एरर, अगर आपका एरर आया, हेडर फाइल रॉन्ग डिक्लेयर किया, स्टेटमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, कोडिंग का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इट इज सिंटैक्स एरर. इट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. आपका वो 0-1 में कन्वर्ट नहीं होगा. इट ऑल्सो नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. इसका मतलब एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, आउटपुट भी दिखाई नहीं देगा. समझ में आया? इफ यू हैव द सिंटैक्स एरर you cannot execute your program or we cannot convert into machine language. इसका मतलब ये है आपका जो भी कोड है वो कंपाइलर कंपाइल करने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. दैट इज 0s and 1. अगर 0s and 1 में प्रॉपरली कन्वर्ट हुआ, कुछ भी आपका एरर नहीं आया, दैट मीन्स इट इज एबल टू एग्जीक्यूट. लेकिन अगर एरर आया तो इट इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. Yeah.
Yes, sir. जैसे मैंने stdio का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, सिंटैक्स प्रॉपरली नहीं लिखा, printf का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, तो या सेमीकोलन क्लोज करना भूल गया, हर एक स्टेटमेंट का सेमीकोलन क्लोज होता है, वो नहीं भूल गया, दैट इज सिंटैक्स एरर and it cannot convert it into machine. That's why it is not able to execute. Sometimes even the program is not having any syntax error is transferable, translatable. मतलब कुछ मैंने मेरा नाम लिख दिया कोडिंग में, बिपिन कमांड, ऐसा चलेगा क्या? बिपिन कमांड अवेलेबल है क्या? It is not translatable, so it can not execute. It can execute कभी, but it may contain some logical error. जैसे लॉजिकल एरर हो सकते हैं, प्रोग्राम में सिंटैक्स प्रॉपर हो गया है, लेकिन मैंने जो लिखा हुआ है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो मैंने कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा है, एडिशन ऑफ प्रोग्राम नहीं दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। समझ में? सिंटैक्स राइट है, बट a प्लस बी करने से a प्लस बी का आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, वो दूसरा ही कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये लॉजिकल एरर है। क्या दिखाई दे रहा है? लॉजिकल। समझ में आया? जो मुझे डिस्प्ले करना था वो डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इट इज लॉजिकल। मैं a प्लस बी कर रहा था, लेकिन a प्लस बी की जगह a प्लस सी का आंसर आ रहा है, तो ये b किधर गया? तो दैट इज मीन्स लॉजिकल। सो इट विल गिव इनकरेक्ट आउटपुट एज अ रिजल्ट। उससे आप लोगों को क्या दिखाई देगा? रिजल्ट में इनकरेक्ट आउटपुट आएगा, सिंटैक्स एरर नहीं बताएगा, लॉजिकल एरर की वजह से आउटपुट रॉन्ग। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So we must first work on the logical building. इसीलिए तो आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है, लॉजिकल एरर अवॉइड करने हैं, इसीलिए आपको लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक बिल्डिंग में टाइपिंग ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, आपको प्रोग्राम एक प्रोसीजर की तरह लिखना है। इसलिए बोला हाउ टू मेक अ टी, मेरा पहला प्रोग्राम हमेशा वही रहेगा, हाउ टू मेक अ टी। यू हैव टू नो दैट हाउ टू मेक अ टी, कैसे बनाते, चाय कैसे बनाते, जो चाय बनाना जानता है वो प्रोग्राम जानता है, ये मैं जब बोलता। Okay, I said those who know the how to make a tea, they know the program. जैसे आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, तो you have to follow all procedure. बर्थडे पार्टी के लिए क्या लगने वाला है, उस तरह वो आप इंस्ट्रक्ट करते जाओगे तो ही बर्थडे हो। मैरिज सेरेमनी है घर पे, तो उसका स्टेप्स है, वी कैन नॉट गो सीक्वेंस वाइज, हम लोग को वो करना होता है। नहीं तो क्या ऐसा थोड़ी है कि पहले क्या करो, अब जैसे चाय बनाना है, मैं बोलता हूँ पहले दूध डालता हूँ, बाद में चाय पाउडर डालता हूँ, बाद में शुगर डालता हूँ और फिर चाय पी लेता हूँ, चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। इज इट नॉट? देयर हैव द प्रॉपर सीक्वेंस। अगर कुछ भी आपको प्रोग्राम प्रॉपर बनाना है, तो यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज लॉजिक, पहला लॉजिक। दूसरा, डू नॉट लीव एनी इंस्ट्रक्शंस। आपको प्रोग्राम का आउटपुट जो चाहिए, मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया है और बी का वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ए का वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, आउटपुट क्या है? डू नॉट लीव एनी इंस्ट्रक्शन, आपकी इंस्ट्रक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। डू नॉट ऐड अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन, जो नहीं चाहिए वो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दिखाओ मत, लिखो मत। दिस आर ऑल द लॉजिक पार्ट, यू हैव टू यूज इट। देन वी हैव टू लर्न सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड सेवरल अदर लैंग्वेज। जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लेते हो, ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोग्राम का सिंटैक्स धीरे धीरे आपको समझ में आता है। सेम यहाँ पे इफ लूप सीख लिया, यहाँ पे फॉर लूप सीख लिया, यहाँ पे व्हाइल लूप सीख लिया, ऑटोमेटिकली C++ में, जावा में आपको वो प्रोग्राम समझ में आएगा। अरे इफ लूप हम लोग ने सी में सीखा था, वैसे ही है, जावा में भी वैसे ही है, सिंटैक्स खाली थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन लॉजिकली इट इज सेम। Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. That's why computer program includes steps that perform input, processing, output. कंप्यूटर ही यही काम है कंप्यूटर का, जो इनपुट देगा उसके ऊपर प्रोसेस होगा, उसके ऊपर ही आउटपुट। जैसे मुझे एक जूस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? फ्रूट्स लूंगा, मिक्सर में डालूंगा, जूसर में डालूंगा, उसको ग्राइंडिंग करूंगा, ग्राइंडिंग होने के बाद जो भी जूस आपका होगा वो आपका क्या होगा, आप लोग ग्लास में यूज करें और पी लोगे, दैट इज आउटपुट। जूस इज योर आउटपुट, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना? इनपुट फ्रूट्स हो गए, प्रोसेसिंग मशीन में हुआ, आउटपुट जूस इन द ग्लास, व्हाटएवर जूस यू गेट इट, दैट इज आउटपुट। ये प्रोसेस में आपको काम करना है। इधर भी वैसे ही, इनपुट द 2 नंबर्स, आफ्टर दैट process addition of that 2 number a plus b, then show the output, that is result। यही काम है आपको, ये 3 काम में आपको पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इज इट क्लियर? हेलो?
हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मत जाओ बेटा. Okay, so we write instruction that tell the computer which device to access for input. आपको कौन से डिवाइस का इनपुट करना है, उसी की तरह आप लोग एक्सेस करोगे, इंस्ट्रक्ट करते रहोगे, कंप्यूटर को बताते रहोगे ये करो वो करो वो करो, तभी कंप्यूटर करता है. आपको पता है चाय बनाने वाली मशीन भी आती है, आप डायरेक्टली बटन दबाया चाय बन जाता है, ऑटोमेटिक. मतलब उसमें कुछ तो प्रोग्राम होगा. आप सोचो, उसमें प्रोग्राम नहीं होगा, अपने आप वो चाय बना लेता है क्या? नहीं. whatever we instruct over there inside the chip, वो आईसी के अंदर, उसके अंदर वो प्रोग्राम लिखा गया है. आपको मिल्क लेना है, वाटर लेना है, टी पाउडर लेना है, शुगर लेना है, उसको प्रोसेस करना है. प्रोसेस होने के बाद ही वो गर्मा गर्म हीट करके आपको, हीट होने के बाद वो चाय आपको उसी बराबर डिवाइस से बाहर निकलता है. That is all instructions we are given already in the machine, and that keeps working when you press one button. एक बटन दबाने से सारे इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर वाइज फॉलो होते हैं और मशीन आपको चाय दे देता है. इज इट राइट? राइट? Yes, sir. या. सो दैट इज कॉल्ड लॉजिक. ऐसा ही लॉजिक आपको सोचना है. अगर कोई डिवाइस मुझे वर्क करना है, सो आप सोचते हो मेरे बाइक के अंदर ना ऑटोमेटिक सेंसर होना चाहिए कि मैं जब भी अवेलेबल नहीं रहूंगा तो मुझे बताना चाहिए आई एम नॉट अवेलेबल देयर, और मैं उधर अवेलेबल होगा तो मुझे मोबाइल में डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करना चाहिए. तो मुझे क्या होगा, मेरे बाइक का चोरी होने का चांस है. सो दिस आर ऑल दैट थिंग. अगर किसी दूसरे ने यूज किया कि तुरंत मुझे अलर्ट होना है कि इट इज नॉट, योर बाइक इज नॉट अवेलेबल ऑन द पर्टिकुलर प्लेस. ऐसा कुछ प्रोग्राम बना है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. कुछ भी सोच सकते हो और उसका लॉजिक इनपुट प्रोसेस आउटपुट की तरह ही होगा. इज इट क्लियर? चलो ना, उसीलिए प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल बताया. अभी आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, सबसे पहले प्रोग्राम को समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड. आपको बोला कोई मैथ्स का एक प्रॉब्लम है, मुझे ऑटोमेटिक मशीन में मैं नंबर दूंगा तो अपने आप आना चाहिए. जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम, या फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, फाइंड आउट द फैक्टर